بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گیزن ایجوکیشن سسٹم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ خوب محنت کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کی ایجوکیشن کے لیے ہر وقت کانشیس ہیں۔ اور میں پروفیسر عامر اقبال، پاک گیزن ایجوکیشن سسٹم فزکس ڈپارٹمنٹ سے آج آپ کو 9th کلاس کی فزکس کا چیپٹر نمبر 2 کائنیمیٹکس، اس کا فرسٹ لیکچر جو ہے ریسٹ اینڈ موشن، اس کے اباؤٹ جو ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ٹاپک پہ جائیں، ریسٹ اینڈ موشن۔ ہمیں یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ کائنیمیٹکس کیا ہے اور اس چیپٹر کے اندر ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کائنیمیٹکس کو ڈسکس کرنے سے بھی پہلے ہمیں یہ بات بخوبی علم ہے، پریویس چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، برانچز آف فزکس میں مکینکس جو ہے یہ ایک فزکس کی برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی آبجیکٹ کو موشن یا ریسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ اٹس کازز اور اس کی وجوہات کو، اینڈ اٹس افیکٹ اور اس کے اثرات کو، یعنی کہ فزکس کی وہ برانچ جس میں ہم آبجیکٹ کی موشن کو جو ہے اور اس کی کازز وجوہات کو اور اس کے افیکٹ اثرات کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس برانچ کو نام دے دیتے تھے مکینکس کا۔ تو مکینکس جو ہے اس کی آگے مین 3 برانچز ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اسٹیٹکس، نمبر 2 پہ ہے کائنیمیٹکس، نمبر 3 پہ ہے ڈائنامکس۔ اسٹیٹکس جو ہوتی ہے یہ برانچ آف مکینکس ہوتی ہے جس میں، یا برانچ آف سائنس کہہ لیں، اصل میں یہ برانچ آف مکینکس کی ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کو ریسٹ حالت میں۔ اس کے بعد آ گیا کائنیمیٹکس۔ کائنیمیٹکس کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی برانچ، اس میں ہم مکینکس کی ہے جس کے یہ برانچ آف مکینکس ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں موشن آف آبجیکٹ کو، آبجیکٹ کی موشن کو وداؤٹ ڈسکسنگ، بغیر ڈسکس کیے، کازز آف اٹس موشن، موشن کی وجوہات کو ڈسکس کیے بغیر ہم جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں موشن کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کائنیمیٹکس کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈائنامکس ہے۔ ڈائنامکس میں جو ہے ہم آبجیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں آبجیکٹ کی موشن کو، لیکن ود اٹس کازز، وجوہات کے ساتھ۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاز کون سی چیز بنتی ہے موشن کا؟ تو یاد رکھیں کوئی بھی فورس جو ہے جو کسی آبجیکٹ کے اوپر، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے، اس آبجیکٹ کے اوپر کوئی فورس لگ رہی ہے، تو یہ جو فورس ہے یہ آبجیکٹ کو موو کروائے گی۔ کیوں کروائے گی؟ کس ڈائریکشن میں کروائے گی؟ یہ ساری کی ساری جو ہیں کازز ہیں اس کے موشن کے۔ تو لہذا کون سی چیز کاز بنی موشن کا؟ فورس۔ تو یہ ہم 3rd چیپٹر میں ڈائنامکس میں پڑھیں گے، لیکن ہمارا جو چیپٹر ہے اب وہ کائنیمیٹکس ہے۔ اس میں ہم جو ہے آبجیکٹ کو کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں وداؤٹ ڈسکسنگ دی کاز آف موشن۔ تو آئے ابھی ہم دیکھتے ہیں کائنیمیٹکس کی ڈیفائن۔ کائنیمیٹکس کیا ہے؟ اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ without discussing the cause of motion۔ موشن کا مطالعہ جو ہے آبجیکٹ کی کا بغیر وجوہات کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کائنیمیٹکس کہا جاتا ہے۔ تو بات ہوئی ہے موشن کی تو، اور ریسٹ کی بات ہم نے یہاں، اب ہمارا ٹاپک جو ہے اصل وہ مین ہے ریسٹ اینڈ موشن۔ تو ہم سب سے پہلے ریسٹ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ریسٹ کیا ہے؟ A body is said to be in rest۔ باڈی ریسٹ میں کہلائے گی if it does not، اگر یہ تبدیل، if it does not change، اگر یہ تبدیل نہیں کرتی its position، اپنی پوزیشن کو with respect to
इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो बॉडी क्या कहलाएगी? रेस्ट में कहलाएगी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगी इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर ये अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? इर्द गिर्द का एरिया। तो यहां पे मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा, उससे पहले मेन वर्ड जो हमारे पास आया है वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग्स क्या है? सराउंडिंग जो होता है ये प्लेस होती है नेचबर्ग एरिया के अंदर वेयर सम थिंग्स, जहां पर कुछ चीजें जो है प्रेजेंट होती हैं और प्रेजेंट मौजूद हैं। सराउंडिंग की क्या हुआ? प्लेस है इन नेचबर्ग, आपके पड़ोस में जो है कोई जगह है, वेयर समथिंग आर प्रेजेंट, जहां पर कुछ चीजें जो है मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें, आप अगर सड़क के किनारे जा रहे हैं तो देखेंगे आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो सड़क के किनारे जो है रोड के इधर उधर दरख्त लगे होते हैं, तो वो आपके अराउंड जो है वो समथिंग्स है, नेचबरहुड में जो है वो क्या है, कुछ चीजें हैं जो कि इसको जाहिर कर रही है सराउंडेड, तो वो आपके लिहाज से क्या है, आपका सराउंडेड एरिया है। इसी तरह आप अगर क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो इर्द गिर्द आपके जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो आपके लिहाज से क्या है, आपका सराउंडेड एरिया है। या उसके अगर क्लास में बैठे हुए अकेले आप बैठे हुए हैं तो आप इर्द गिर्द की दीवारें देख लें, आप विंडो देख लें, बाहर पड़े हुए ऑब्जेक्ट देख लें, वो क्या है, आपका सराउंडेड एरिया है। तो सराउंडेड एरिया के साथ ही बात एक और आ गई थी पोजीशन की, कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन क्या होती है? पोजीशन असल में लोकेशन होती है ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की लोकेशन को बयान करना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, किसी जगह की लोकेशन को बयान करना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से वो क्या कहलाता है, पोजीशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल से आपके घर से आपका स्कूल, तो आपके घर जो है उससे स्कूल की लोकेशन को, यानी कि स्कूल की लोकेशन को जो है आपके घर से रेफरेंस पॉइंट क्या है, आपका घर है, और लोकेशन किसकी बयान की जा रही है, स्कूल की, तो आपके स्कूल की लोकेशन को आपके घर के लिहाज से बयान करना जो है वो क्या कहलाता है, पोजीशन। तो लिहाजा फिर पोजीशन क्या हुई, द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। फॉर एग्जांपल प्लेस क्या थी, स्कूल था, जिसकी लोकेशन को बयान किया जा रहा था विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या था, आपका होम था, जहां से आप क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने एक डॉट लगा लिया और मैं इस डॉट के पास इस तरह खड़ा हूं, तो मैंने ये जो डॉट लिया है ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये एक पोजीशन है जहां से मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा। लेकिन जब रेस्ट की बात होगी तो मैं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से बिल्कुल स्टैटिक खड़ा हुआ हूं, रेस्ट हालत में हूं, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। तो याद रखो, क्या बॉडी सेट टू बी रेस्ट, बॉडी रेस्ट में उसी वक्त होगी इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के एरिया के लिहाज से। आपने क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट देखे होंगे कि दे आर इन रेस्ट, वो एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। स्टूडेंट सिटिंग इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर आपने बैठे हुए स्टूडेंट देखे हैं, तो स्टूडेंट सिटिंग इन अ क्लासरूम आर इन रेस्ट, वो रेस्ट में होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से। अब देखिए एक स्टूडेंट ये बैठा हुआ है, दूसरा ये बैठा हुआ है क्लासरूम में बेंच के ऊपर, तीसरा ये बैठा हुआ है, तो ये एक दूसरे के लिहाज से जो है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये क्या है, रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि ये तीनों जो है स्टूडेंट जो है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से। इसी तरह आप देखेंगे कि एक गांव है या आपका घर है, आपके घर के साथ कुछ और घर बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी घर हैं ये क्या है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, लिहाजा आपका घर भी जो है वो दूसरे घरों के लिहाज से पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, दूसरे घर आपके लिहाज से जो है
वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो लिहाजा यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी कि बॉडी उस वक्त रेस्ट में होती है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब ये जो साथ वाले घर है ये क्या है, सराउंडेड है ना, इसका सराउंडेड एरिया है ना, नेबरहुड में कुछ चीजें प्लेस है, यानी कि सेम थिंग्स प्रेजेंट है इन नेबरहुड। इसी तरह क्लासरूम में भी क्या है, सेम चीजें, सेम स्टूडेंट जो है वो नेबरहुड के अंदर मौजूद है। अब बाकी बात मोशन की। मोशन जो है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी मोशन में होगी इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को तब्दील करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के एरिया के लिहाज से। फॉर एग्जांपल मैं इसी डॉट जो मैंने पहले आपको बताया था, मैं इस डॉट के लिहाज से, ये मेरा सराउंडेड एरिया है, और इसके लिहाज से अगर मैं मूव कर जाता हूं किसी भी डायरेक्शन में, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता हूं, तो मैं इसके लिहाज से क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। इसी तरह अगर देखा जाए कि पैसेंजर सिटिंग इन मूविंग बस, बस में बैठे हुए मुसाफिर जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से तो वो रेस्ट में होंगे, बट दे आर इन मोशन, वो मोशन में होते हैं किसके लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से, स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो बस से बाहर खड़ा होता है, बस से बाहर खड़ा हुआ है, जो बस स्टॉप के ऊपर मुसाफिर खड़ा हुआ है, अगर उसके लिहाज से देखें तो बस में बैठे हुए मुसाफिर जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, क्योंकि बस जो होती है वो मूव कर रही होती है, और वो जो सराउंडेड एरिया के अंदर वो जो रेफरेंस पॉइंट है, उस वो जो शख्स है वो अपनी स्टैटिक हालत में है, लेकिन बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो लिहाजा पैसेंजर जो सिटिंग होंगे मूविंग बस आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से तो वो रेस्ट में होंगे, बट दे आर इन मोशन, वो मोशन में होंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिहाज से जो स्टैंडिंग है आउटसाइड द बस। तो लिहाजा इसी तरह आप चलती हुई बस में देखें या आप गाड़ी के ऊपर सफर कर रहे हैं तो आप देखें कि पास खड़े जो सड़क के किनारे जितने भी दरख्त होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, लेकिन आप उनके लिहाज से क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। लेकिन आपने ये सवाल भी यहाँ पे पैदा होता है कि हम तो आगे को मोशन कर रहे होते हैं और वो दरख्त क्या होते हैं, वो पीछे को मोशन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर सेल्फ, हमारे लिहाज से। लेकिन अगर वो हमें देख रहे हैं तो वो उनके लिहाज से हम मोशन में हैं, वो रेस्ट में हैं। लेकिन अब देखें यहाँ पे जो मैंने अभी बात की है कि वो दरख्त अगर देखें गाड़ी आगे को गुजर रही होती है, दरख्त पीछे को गुजर रही होती है, तो इस किस्म की मोशन को क्या कह जाते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। कि यानी कि वो स्टेट ऑफ जिसके अंदर बॉडी रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहा जाता है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मोशन या रेस्ट की हालत होती है बॉडी की, उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव मोशन कहा जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, मोशन भी क्लियर हो गया, रिलेटिव मोशन भी क्लियर हो गया। इसके बाद आगे एग्जांपल जो है हम रिलेटिव मोशन की देना चाहेंगे, तो इससे हमें फिर मजीद एक मर्तबा जो है वो रेस्ट और मोशन जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने बात की है कि ये स्टेट होती है रेस्ट और मोशन दोनों की। तो पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस, चलती हुई बस में बैठे हुए मुसाफिर जो हैं और इन रेस्ट, वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से, यानी कि वो अपने सराउंडेड एरिया के लिहाज से क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। सराउंडेड एरिया का एक स्टूडेंट के लिहाज से दूसरा स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट के लिहाज से क्या उसका सराउंडेड एरिया बन जाता है। तो पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बस में बैठे हुए मुसाफिर एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में होते हैं, बट लेकिन दे आर इन मोशन, वो मोशन में होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन सा होता है, वो शख्स जो बस स्टॉप के ऊपर खड़ा होता है, स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, जो बस से बाहर खड़ा होता है बस स्टॉप के ऊपर, उसके लिहाज से वो क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। तो ये थी रिलेटिव मोशन की एक एग्जांपल्स है। इस तरह सराउंडिंग का भी आपको पता चल गया, पोजीशन का भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, जो हमारे टॉपिक के अंदर मेन की पॉइंट थे कि पोजीशन क्या है, सराउंडिंग क्या है। क्योंकि हम जब भी पोजीशन चेंज करेंगे तो सराउंडिंग एरिया के लिहाज से, तो जब पोजीशन चेंज कर ली सराउंडिंग एरिया के लिहाज से तो हम क्या हुए, मोशन में हुए। और अगर हम डज नॉट चेंज मोशन, मोशन को चेंज डज नॉट चेंज पोजीशन, पोजीशन को चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट,
या सराउंडिंग, और यही रेफरेंस सराउंडिंग एरिया क्या होता है, यही रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके लिहाज से हम अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो हम मोशन में हैं, और अगर हम अपनी सराउंडिंग एरिया के लिहाज से यानी कि रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते तो हम क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं पाक गैरिसन की वेबसाइट से, वहां से आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप घर में बेटा मुसलसल अपना होमवर्क जो है उसको डेली बेस पे करें और नमाज बाकायदगी से पढ़ें और बी सेफ एट होम। थैंक यू।